अभेद किला 2019 में जीता। तो केंद्र से कोई बड़ी परियोजना आई हो, संसद के अंदर भी कोई उनका ऐसा कोई वक्तव्य रहा हो, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आ पाया है। जो भी काम हुए वो उनके मुख्यमंत्री काल के काम है। तो आशाएं रही होंगी लोगों की, तो उन आशाओं को भी निराशा में 4.5 साल में बदलते हुए देखा है। 2014 से लेकर के 19 तक वो MP था, तब आप देखें जब कितने काम हुए। बिल्कुल आते हैं जी, अपने एरिया में काम करते हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। सांसद शर्मा का जो कार्यकाल है, इतने भी आज तक हमने आंदोलन करे, उन्होंने आज तक हमारे को कोई झूठा आश्वासन भी नहीं दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो यानी कि काम हुए ना, वो ये तो उसके तो पासंग भी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। रोहतक ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਪਤ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਾਨੀ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਜਰ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਾਸਗੜ੍ਹ ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਦੁਰਗ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰੋਹਤਾਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ 1140 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਦਿਨੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਖਰਾ ਕੋਟ ਟਿੱਲੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਚ ਬੌਧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। रोहतक हरियाणा का एक जाट बहुल लोक सभा खेत्र भी है, जो दिल्ली के बेहद नेड़े होने के चलते ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजिक और राजनीतिक तौर पर काफी प्रसिद्ध मनिया जाता है। ਉਂਝ ਤਾਂ आजादी तो पहला इत्थों चौधरी छोटू राम सरीखे लोग देश की राजनीति दे विच खासी दखलअंदाजी करते आए ने, पर आजादी तो बाद संयुक्त पंजाब होवे या फिर मौजूदा हरियाणा, रोहतक ने हमेशा राजनीतिक तौर पर अपनी सूझबूझ का परिचय दिता है। तां हुण जाणदे हां सियासी तौर पर की समीकरण ने। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਮਤਦਾਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਹਤਕ 'ਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਲਾਨੌਰ, ਮਹਿਮ, ਗੜੀ ਸਾਂਪਲਾ ਕਿਲੋਈ, ਝੱਜਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਬਾਦਲੀ, ਬੇਰੀ, ਕੌਸਲੀ। ਤਾਂ ਰੋਹਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ 2019 ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 17,37,133 ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,37,706 ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ 7,99,409 ਨੇ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਚੁਣਾਵ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਬਣੇ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 9 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 1967 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਇੰਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਖੋਹ ਲਈ। ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੁਆਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਰੋਹਤਕ ਸੀਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਪਾਈ। 1999 ਦੇ ਆਮ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਆਂਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੰਬੂ ਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਸੀਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀਟ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਵਾਰ 1991, 1996, 1998 ਚ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਹਿਜ਼ 383 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਚ 1999 ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਇਨੈਲੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਰੋਹਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਇਨੈਲੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। 2004 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਹਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਰੋਹਤਕ ਸੀਟ ਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਨੈਲੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਫਿਸ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਰੋਹਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ 17 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 2 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਹੁੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਦ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਨੇ। ਤਾਂ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 5,73,845 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ, 5,66,342 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇਸਵਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ 21,211 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। हमारे साथ रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा है, जिन्होंने 2019 में रोहतक का वो अवैध किला जीता जिसकी शायद कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, चुनौती क्या बनी सबसे पहले जब आप सांसद यहाँ से बन के गए, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत काम किए हैं। देखिए, ऐसा है, आपने कहा कि भाई अवैध किला 2019 में जीता, ये संभव हुआ है 36 बरादरी, सबके आशीर्वाद से, सबका साथ, सबका विकास। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है वही 2019 में लागू है। सब ने साथ दिया और कभी हमने ज़िंदगी में घमंड की बात नहीं की है और इसी कारण से हम आगे बढ़े। और उसी हिसाब से जैसे लोगों ने एक विश्वास जो था कि भी लोगों ने एक विश्वास जो दिखाया था कि भाई हम कुछ करके दिखाएंगे, और हमने पूरी कोशिश भी करी है कई कामों में। और जो आप जो बात कर रहे हैं कि भाई जैसे दीपेंद्र हुड्डा की जैसे आपने बात की, वो जो काम हुए, जो भी काम हुए वो उनके मुख्यमंत्री काल के काम है, मुख्यमंत्री काल के काम है। अब 2014 से लेकर के 19 तक, मैं कहूँगा 2014 से लेकर के 19 तक वो MP था, तब आप देखें जब कितने काम हुए, जब आप बताएं कितने काम हुए। वो मुख्यमंत्री के सिस्टम था और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ। और हम पूरे प्रयासरत हैं कि रोहतक की जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सेवा करें, लोगों के लिए काम आए। और उसी उसमें संदर्भ में आप देखेंगे भादरगढ़ से जो एक पुरानी बात चल रही थी, भादरगढ़ से लेकर के आसोदा तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली ने जो है इसको सेंट्रल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मेट्रो के लिए मंजूरी दी है। अब हमारी प्रयास है कि बादली से ढासा गांव से बादली तक जुड़े और ये आसोदा से सांपला तक आए। ये सारे प्रयास हैं। ऑर्बिटल कॉरिडोर आ रहा है, आपने देखा कि ऑर्बिटल कॉरिडोर जैसे सांपला वाला जैसे ये बना कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे बना है, इसी तरह से रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर आ रहा है जिसकी ब्रांचेस डिफरेंट वे से अलग अलग तरीके से जुड़ेंगी। और बहुत सारी चीज़ें और ऐसी अब आप देखें रोहतक से महम में आसी तक की रेलवे लाइन का जो है मंजूरी मिली और रोहतक से महम का सेक्टर कंप्लीट हो रहा है। मुझे उम्मीद है आसी तक का भी शायद इस महीने के अंत तक या 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और उस पर भी रेलवे लाइन पर जो है गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। रेलवे लाइन के कई ठहराव भी, रेलवे स्टेशनों के सुधार, आपके 508 स्टेशन में रोहतक को मिला, भादरगढ़ को मिला, कोसली को भी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मिला है। तो बहुत सारी चीज़ें हर फील्ड में जो है, किसान हो, खेती और मजदूर हो, व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, नौजवान हैं, आपके सैनिक भाई हैं, शहीद हैं, हर तबके खिलाड़ी हैं, सभी तबकों में सरकार ने और हम सब ने मिल कर के कोई भी काम, जब सरकार जब चलती है ऊपर भी सरकार नीचे भी डबल इंजन की सरकार है, कोई भी काम जो होता है, हमारा जो काम है बतौर सांसद के हमारा काम है उन कामों को जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है उन कामों को
कहीं पार्लियामेंट है वहाँ उठाना या कहीं लिख करके भेजना, हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को लिख करके भेजना, ये हमारा काम है। और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि जो हम जिन जिन कामों को हम लिखित रूप से भेजते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, उनका लिखित जवाब आता है केंद्र सरकार से भी, हरियाणा सरकार से भी, और उन पर कार्रवाई भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई भी शुरू होती है। एक 2019 में एक बड़ा मुद्दा था कांग्रेस की तरफ से भी आपकी तरफ से कि रोहतक मेट्रो आएगी, लेकिन साखोड़ से आगे तो अभी तक निकली नहीं है। ये अभी कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, आपने पता भी होगा, इस बजट में भी घोषणा होगी है, जल्दी उसका जो है पत्थर रख के उसका काम भी शुरू होगा। आसोदे तक आ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आसोदे तक का पत्थर रखा जाएगा तो सांपला तक का भी उसमें ऐड होगा, मुझे उम्मीद है। अच्छा, एमपी लेड का कितना पैसा खर्च किया आपने? एमपी लेड का तो हमने तो और मिल जाओ कितना भी, हमारा तो पैसा रुकता ही नहीं है, जितना पैसा आता है तुरंत हमारे तो आगे से आगे लाइन लगी रहती है। कितना होगा भाई? 10 करोड़ में से हमारे सारा खर्च हो गया, सिर्फ 2 करोड़ मुश्किल से बचे। मतलब वो एस्टिमेट बाकी है, मतलब मंजूर, मतलब रिलीज्ड है, मतलब उनको लोगों को सैंक्शन किया हुआ है, उसके एस्टिमेट में सरकारी तंत्र है, उसमें टाइम लगता है कभी एस्टिमेट बनाने में, कभी एस्टिमेट बन गया, मान लो कहीं हमने 11 लाख रुपए सैंक्शन किए, एस्टिमेट बना लिया वो 18 लाख का हमने दिए, उसमें हिसाब से 11 लाख, क्योंकि पूरा हल्का देखना है ना, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कहीं 5 लाख दिए, कोई 11 दिए, कहीं 21 दिए, तो वो एस्टिमेट में कई बार गड़बड़ हो जाती है कि एस्टिमेट ज़्यादा का बना लेते हैं और फिर हमने रिपीट कराना पड़ता है, भाई इतना नहीं, इसको इसी में सीमित करो। कोई ऐसा काम जो कसक बाकी रहेगी नहीं कर पाए? नहीं, कसक देखो, सुनो, सरकार है, सरकारों में काम चलते रहते हैं, विकास का पहिया थमता नहीं है। हमें कहे भाई हमने इतने काम कर दिए, थम गए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत हो जाते हैं, कुछ कामों में थोड़ा समय लगता है, और कुछ काम ऐसे हैं जिसमें और ज़्यादा समय लगता है, कुछ कामों में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, धीरे धीरे कर करके, अब ऑर्बिटल कॉरिडोर की जो बात थी, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, 5600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हम जब आए थे, जब इस पर चर्चा हुई थी शुरू में कि भाई एक कॉरिडोर, पैरेलल कॉरिडोर रेल का भी इसके केएमपी के साथ साथ बनेगा, लेकिन मंजूर कब हुआ? मंजूर हुआ 3-3.5 साल के बाद। तो समय लगता है चीज़ों में। मेट्रो के हमने आते ही आवाज़ उठाई थी पार्लियामेंट में, मैं कम से कम 3 दफ़ा मेट्रो की आवाज़ उठा चुके हूँ, कि भी भादरगढ़ से लेकर के, लेकिन समय लगता है, कई चीज़ें ऐसी हैं जल्दी मंजूर होती है। अब हमने एमपी बनते ही हमने आवाज़ उठाई थी झज्जर को दिल्ली से जोड़े, झज्जर की रेल लाइन को किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचाएं वाया बिजवासन। आवाज़ उठाई, बार बार आवाज़ उठाई, लेकिन अब मंजूर हुई है। 1225 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने मंजूर कर दिया है, और रेलवे ने भी उसमें ओके कर दिया। थोड़ी सी बीच में एक जो ज़मीन का जो है अभी थोड़ा सा है कि जो उसका अधिग्रहण करना है, उसको एक्वायर करना है, बाकी एवरीथिंग इज ओके। कोई ऐसा मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में कोई ऐसा कार्य नहीं आया है। 4.5 साल के कोई टेन्योर में आपकी कोई जानकारी में कोई आया हो तो आप ज़रूर मेरी जानकारी दुरुस्त कर सकते हैं। कोई विकास कार्य ऐसा नहीं देखा गया है, कोई केंद्र से कोई बड़ी परियोजना आई हो, संसद के अंदर भी कोई उनका ऐसा कोई वक्तव्य रहा हो, मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आ पाया है। बल्कि मैं तो दूसरी बात ये कहूँगा कि जब ये कांग्रेस में थे तो उस समय इनका एक बयान था कि जो है कांग्रेस में, जब उस समय मैं रोहतक से सांसद था ये, तो अब इनका एक बयान था कि सारा काम रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, और इस बात का विरोध करते हुए मैं समझता हूँ कि इन्होंने पार्टी पे त्याग पत्र दिया था। तो शायद इनको उस बात की तकलीफ़ रही हो, क्योंकि जो मंजूरशुदा प्रोजेक्ट भी थे हमारे समय के, जो हमने मंजूर कराए थे, वो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स, उनकी भी अच्छे से पैरवी करके उनको यहीं रखने में ये असफल साबित हुए हैं। उदाहरण के तौर पे महम के अंदर इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट आना था, अब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर चला गया, लेकिन उसकी कोई पैरवी ना तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कही, हालांकि वो 2018 में स्थानांतरण हो गया था, तब ये सांसद नहीं थे, लेकिन 19 के बाद इन्होंने भी उस पर कोई पैरवी नहीं करी। इसी तरीके से एम्स बाड़सा परिसर के अंदर 11 बड़े संस्थान आने थे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे समय बनवा दिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था इसका, मगर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट बनना है वहाँ, नेशनल कार्डियोवास्कुलर इंस्टीट्यूट, नेशनल जीरियाटिक्स इंस्टीट्यूट, इन्फेक्शियस डिजीज़ इंस्टीट्यूट, तो ये सारे वहाँ पे 11 संस्था बनने, 300 एकड़ में बहुत बड़ा स्वास्थ्य परिसर बनना था। ये यूपीए की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि वो देश के लिए एक
उदाहरण ये बनेगा। लेकिन वो एक इंस्टीट्यूट जो बना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरुआत करी, उसके बाद कोई नया इंस्टीट्यूट नहीं बन पाया। उसकी पैरवी ना तो वहाँ से 2019 तक जो विधायक रहे, मंत्री रहे धनखड़ साहब, उन्होंने करी, ना डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने करी, ना किसी हरियाणा किसी और ने। इसी रूप से रेल कोच फैक्ट्री बननी थी गोहाना के अंदर, वो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के साथ लगता क्षेत्र है और पूरे हरियाणा को उससे का लाभ मिलना था। वो रेल कोच फैक्ट्री गोहाना से उसका स्थानांतरण कर दिया गया वाराणसी में, तो उसकी भी कोई पैरवी नहीं करी। इसी रूप से मेट्रो पहले फेज़ में एक सापला, फिर दूसरे रोहतक और RRTS की लाइन हिसार तक पहुंचनी थी। इस बात की सैद्धांतिक मंजूरी हमारे समय मिल चुकी थी। भादुगढ़ वाली लाइन का उस टाइम जो है कंस्ट्रक्शन पूरा होने वाला था जब सरकार जो है बीजेपी की आई। तो मैं समझता हूँ कि ना वो मेट्रो आज 9.5 साल के बाद भी मेट्रो भादुगढ़ में साखोल में जहाँ आखिरी खंबा है उसके आगे एक खंबे का भी निर्माण इस सरकार ने नहीं कराया, और ना ही हमारे जो सांसद हैं उन्होंने उस बात को लेकर कोई ऐसी कोई, तो मेरी जानकारी में कोई नया कोई बड़ा कोई परियोजना, विकास की कोई बड़ी परियोजना रोहतक लोकसभा क्षेत्र में मेरी जानकारी में नहीं आई है। बहुत निकम्मा निठल्लापन जो कार्यकाल चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में जो यानी कि काम हुए ना रोहतक हल्के के, वही तो उसके तो पासंग भी नहीं है, कहीं भी नज़दीक भी नहीं है उसके। तो कोई काम कोई एक ईंट भी कहीं लगाई हो तो बता दे, अरविंद शर्मा जी खुद बता दे, एक ईंट भी कहीं यानी कि शिलान्यास किया। और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा हर रोज़ कहीं ना कहीं रोज़ नए यानी कि शिलान्यास करते थे, कहीं नहीं कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में आते हैं अरविंद जी? नहीं, कभी नहीं आई, हमें तो कभी देखे नहीं। कभी समस्याएं सुनते हैं, जैसे CM साहब तो कहीं उधर समस्याएं सुनते भी हैं लोग, ये तो कभी आए नहीं रोहतक के अंदर, हमने देखे नहीं, कभी भी नहीं देखा। ये बात नहीं है कि वो लोगों से नहीं मिलते। जब भी वो रोहतक में हफ्ता नहीं, उनको एक हफ्ता नहीं बीतता, वो पब्लिक के बीच में जाते रहते हैं और जनता के जो काम हैं, किसी को फ़ोन करना, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, जो भी मतलब पब्लिक के काम हैं, और बहुत ही नरम स्वभाव से अधिकारियों से भी और जो जनता है उनसे भी सरल भाव से मिलते हैं और सबके सुख दुख में काम आते हैं। मैं एक कर्मचारी यूनियन का नेता होने के कारण सांसद अरविंद शर्मा के बारे में बता देना चाहता हूं कि सांसद शर्मा का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान जितने भी आज तक हमने आंदोलन करे, उन्होंने आज तक हमारे को कोई झूठा आश्वासन भी नहीं दिया है हमारे बीच में आके, और ना कोई हमारी मांगे है या हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सरकार के सामने कोई बात रखी है। तो मैं इसे असहमत हूँ उनसे। जहाँ तक समझता हूँ हमारे नगर निगम की जिस क्षेत्र है और उनका जो कार्यशैली है, हमें आज तक उन्होंने उनका कोई कार्य नहीं देखा, ना डेवलपमेंट का कार्य देखा है, ना कर्मचारी के हित का काम देखा है। आज आप देखिए, आप एक रोहतक की बात ना करिए, आप पूरे हरियाणा की क्या पूरे देश की बात कीजिए, आज आपको विकास के नाम पे कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आज आप देखिए पूरा हरियाणा आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में किस तरह से जूझ रहा है, विकास तो है ही नहीं कहीं। और आपके विरोधी कहते हैं कि संसद में आपको बोलते हुए नहीं देखा, कभी क्षेत्र की आवाज़ उठाते नहीं देखा। संसद में तो हम आवाज़ ना उठाते थे, मेट्रो कैसे आती आप बताओ? ये आवाज़ ना उठाते थे, महमवाड़ी लाइन कैसे मंजूर होती? आवाज़ ना उठाते थे, ऑर्बिटल कॉरिडोर कैसे आता? नहीं समझे? तो संसद अब देखें, संसद बीच में संसद में कितनी रुकावटें हुई, आप सबको पता कितनी रुकावटें हुई संसद में, और हमने तो ऐसी ऐसी आवाज़ें उठाई हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो कोई सोच भी नहीं सकता। हम पहले सांसद हैं जो संसद में आवाज़ उठाई कि भी पूरे देश को रोहतक कोई नहीं, पूरे देश को जब राम लल्ला के दर्शन शुरू होंगे, अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन शुरू हो जाएंगे, तो पूरे देश को रेलवे मंत्रालय अयोध्या से पूरे देश को रेल के जरिए से, क्योंकि इकोनॉमिकल साधन है रेल का, पूरे देश को जोड़े डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये कोई सोच सकता है इसकी बात? बताओ आप अपने कार्य आप गीता के बारे में हिंदी को देर सो मेनी थिंग्स जो है। अब जब मिलेट्स मोटा अनाज जो किसानों के लिए एक वरदान है, मोटा अनाज, उसकी आवाज़ हमने कितनी ज़बरदस्त तरीके से मिलेट्स की उठाई थी।